آغاز اہم خبر سے کریں گے۔ سنجانی ٹول پلازا پر قیدیوں کی 3 وینز پر نامعلوم افراد نے حملہ کر دیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق نامعلوم افراد نے سنجانی ٹول پلازا پر پولیس قیدی وینز پر فائرنگ کی اور شیشے بھی توڑے۔ حملے میں متعدد قیدی فرار ہو گئے۔ ملزمان کو پیشی کے بعد اٹک جیل منتقل کیا جا رہا تھا۔ قیدی وینوں میں 150 سے زائد قیدی موجود تھے۔ آئی جی اسلام آباد کا کہنا ہے کہ تمام فرار ہونے والے قیدیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تمام 82 قیدی دھرنے کیسوں میں ملوث تھے۔ اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندے نعیم جنجوا سے۔ جی نعیم، یہ کیا معاملہ ہے اور کیا تمام کے تمام قیدیوں کو دوبارہ سے گرفتار کیا جا چکا؟ اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے وہ خبر آئی تھی کہ سنجانی ٹول پلازا کے اوپر جو ہے وہ 3 قیدی وینز جو جا رہی تھیں، جس میں دھرنے کے جو قیدی تھے تقریباً 82 بتائی جا رہی ہے، جن کی تعداد اس میں ہائی لیول کی شخصیات بھی جو تھی وہ بھی موجود تھی۔ ان وینز کے اوپر تقریباً 20 سے 22 لوگوں نے حملہ کیا اور اس کے اوپر فائرنگ بھی کی اور متعدد وینوں کے جو ہیں وہ شیشے بھی توڑ دی۔ اور پولیس ذرائع کا یہ کہنا تھا کہ وہ تمام جو اس میں قیدی موجود تھے وینز میں، ان کو بھگا کر اپنے ساتھ لے گئے تھے، جس میں 4 پولیس اہلکار اس دوران زخمی بھی ہوئے تھے۔ لیکن آئی جی اسلام آباد کا اور پولیس کا اب کہنا یہ ہے کہ جتنے بھی افراد جو ہیں ان کو چھڑایا گیا تھا ان وین سے، وہ قریبی جو سنجانی کا جو علاقہ ہے یہاں پہ تھے، اور پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ یہاں پہ پہنچ گئی تھی اور اس کو کارڈن آف کرنے کے بعد تمام کے تمام جو افراد جن کو چھڑایا گیا تھا، پولیس نے ان کو دوبارہ سے گرفتار کر لیا ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو 82 افراد تھے، جو 82 ملزمان اس میں موجود تھے، ان کو اٹک جیل میں رکھا گیا تھا، اور یہ جب پی ٹی آئی کا احتجاج ہوا تھا اس دوران توڑ پھوڑ کے نتیجے میں یہ لوگ گرفتار ہوئے تھے اور مختلف جیلوں میں ان کو رکھا گیا تھا، اور یہ جو لوگ تھے ان کو اٹک سے لایا گیا تھا اور یہاں پہ عدالتوں میں جن لوگوں نے فائرنگ کی ان کا نہیں پتہ چل سکا کہ کن افراد کی جانب سے فائرنگ کی گئی؟ جی، پولیس کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو جو چھڑانے کے لیے 18 سے 20 لوگ آئے تھے، جب انہوں نے فائرنگ کی اور اس کے بعد پولیس کی نفری فوری طور پر وہاں پہ موقع پر پہنچ گئی تھی، اور پولیس کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 4 افراد کو گرفتار بھی کر لیا گیا، اب ان سے مزید تفتیش بھی جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بھاری نفری اسلام آباد کی سنجانی ٹول پلازا کے ارد گرد طلب کر لی ہے، ساتھ ہی قریبی تھانہ بھی موجود ہے، وہاں پہ اس وقت بھی جو ہے وہ سادہ کپڑوں میں بھی جو ہے وہ پولیس کے اہلکار سرچ آپریشن جاری کیے ہوئے ہیں، اور جو ارد گرد کا جو علاقہ ہے وہاں پہ جو حملہ آور تھے جو فرار ہوئے ہیں ان کی تلاش ابھی بھی جاری ہے۔ تو نعیم، آپ یہ بتائیے، جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ حملہ آوروں نے فائرنگ بھی کی اور اس گاڑی کے شیشے بھی توڑے، کیا اس موقع پر کچھ قیدی زخمی یا پولیس اہلکار کوئی زخمی تو نہیں ہوا اس میں؟ جی بالکل، جب یہ فائرنگ کی گئی ہے تو سب سے پہلے جو قیدیوں کی جو وین آگے تھی اس کے ٹائروں پہ گولیاں ماری گئی تھی، اور ٹائر برسٹ کرنے کے بعد جب یہ وین رکی اور اس کے بعد دیگر جو گاڑیاں تھیں ان پہ بھی فائرنگ کی گئی۔ ساتھ ایک پروٹیکشن وین بھی تھی جس میں مسلح جو گارڈ ہوتے ہیں، جو پولیس کے اہلکار ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر بھی فائرنگ کی گئی، لیکن موجودہ طور پر ابھی تک کسی بھی قیدی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ پولیس نے اس کی کوئی تصدیق نہیں کی ہے کہ جو قیدی موجود تھے ان وینوں میں ان کے اوپر فائرنگ سے کوئی ان سے زخمی ہوا ہے، لیکن یہ دعویٰ ضرور کیا گیا ہے کہ تمام جو حملہ آور تھے وہ ان قیدیوں کو چھڑا کر لے گئے تھے، اور کچھ ہی دیر میں پولیس نے تمام کے تمام جو فرار ہونے والے افراد تھے ان کو گرفتار کر لیا، اور اب تمام افراد جو ہیں وہ پولیس کی کسٹڈی میں موجود ہیں۔ ٹھیک ہے نعیم، آپ ساتھ ہی رہے گا، سردار اویس سے بھی اس معاملے کے حوالے سے تفصیلات جانیں گے۔ سردار اویس، آپ کے پاس کیا معلومات ہیں اس واقعے کے حوالے سے؟ واقعہ جس میں جو ہے وہ پولیس وین پر حملہ کیا گیا تھا اور قیدیوں کو جو ہے چھڑانے کی کوشش کی گئی تھی، اب پولیس کا موقف سامنے آیا کہ سنجانی ٹول پلازا کے اطراف میں جو ہے وہ گرینڈ آپریشن کیا گیا پولیس کی جانب سے، اور پولیس نے آپریشن کے بعد جو فرار ہونے والے تمام ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ آپریشن کے دوران پولیس اور حملہ آوروں کے مابین فائرنگ کا بھی تبادلہ ہوا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق جو حملہ آور تھے ان کی تعداد 20 سے 25 بتائی گئی ہے۔ حملہ آوروں کی جانب سے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے پولیس وین پر فائرنگ بھی کی گئی تھی، اور پولیس کا بھی کہنا ہے کہ ان کے خلاف مقدمہ بھی درج کیا جائے گا، اور ذرائع کا بھی کہنا ہے کہ ابھی آئی جی اسلام آباد کے موقف سامنے آیا کہ 3 قیدی وینز میں 82 ملزمان جو ہیں وہ موجود تھے، جنہیں پیشی کے بعد اٹک جیل منتقل کیا جا رہا تھا، اور سنجانی ٹول پلازا کے پاس نامعلوم ملزمان جو ہیں وہ قیدی وین پر حملہ آور ہوئے۔ حملے کے بعد کچھ قیدی وین سے فرار ہو گئے تھے، اور فرار ہونے والے قیدیوں کو اب دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ آئی جی کا مزید یہ کہنا ہے کہ پولیس نے قیدیوں کو فرار کروانے کی کوشش ناکام بنا دی، اور تمام جو حملہ آور تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور قیدیوں کو بھی ہے جو دوبارہ گرفتار کر لیا جو فرار ہوئے تھے۔
अच्छा नईम, आप ये बताइएगा, ये जो आप बता रहे थे कि संजानी टोल प्लाज़ा पर ये वाक़या जो है वो पेश आया है, तो टोल प्लाज़ा पर भी तो स्टाफ होता है, वहाँ पर भी हमला होता है, वहाँ पर भी कुछ सिक्योरिटी के इक़दामात होते हैं, तो उन्होंने क्या देखा? क्या कोई इस वाक़े की सीसीटीवी फुटेज मौजूद है? और एग्जैक्ट जगह बताइएगा, किस जगह पर ये वाक़या पेश आया? ये संजानी टूल प्लाजा के बिल्कुल करीब ही है, लेकिन जो संजानी टूल प्लाजा पे जो स्टाफ होता है वो तो ज़ाहिर है उसको वो टूल प्लाजा का स्टाफ होता है, उसमें 1 या 2 गार्ड ऐसे होते हैं जिनके पास गन मौजूद होती है। अब जिस जिस रास्ते से ये वैन्स होके जाती हैं उस पे आजकल इस्लामाबाद में सिक्योरिटी वैसे ही हाई अलर्ट और मौजूद भी होती है। पुलिस जो है वो जब इसकी तफ्तीश का आगाज उसने कर दिया तो अब सबसे पहले जो इससे इनके रास्तों में जो जुडिशल कम्प्लेक्स है जहाँ पे इनको पेश किया गया था, वहां से संजानी टूल प्लाजा तक जो कैमरे मौजूद हैं उनकी सीसीटीवी फुटेज हासिल की जाएगी और साथ ही जो टूल प्लाजा है उसकी सीसीटीवी फुटेज भी हासिल की जाएगी और देखा यह जाएगा कि इन वैन के पीछे कौन कौन सी गाड़ियां थी या हमलावर कितनी देर से इन वैन का पीछा कर रहे थे, या फिर ये वैन जब टूल प्लाजा के करीब पहुंची है तो वहां पे घात लगाए बैठे थे तो उस वक्त ये हमला हुआ। लेकिन अभी तक जो है वो ये नहीं बताया जा रहा है कि हमलावर जो है वो जुडिशल कम्प्लेक्स से इनके पीछे आ रहे थे वो, या फिर वो रास्ते में किसी जगह पे छुपकर उन्होंने फायरिंग की है। लेकिन पुलिस की जानिब से एक दावा ये किया जा रहा है कि जितने भी अफराद जो संजानी टूल प्लाजा के करीब का जो इलाका है उनमें जो फरार हो गए थे उनको फौरी तौर पर तकरीबन 1 घंटे के अंदर अंदर तमाम अफराद को दोबारा गिरफ्तार भी कर लिया और जो हमलावर थे उनमें से भी 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। जी अच्छा सरदार वैस, आप ये बताइएगा, जब ये हमला हुआ उसके बाद जैसे कि बताया जा रहा है पुलिस की जानिब से तमाम कैदियों को दोबारा से हिरासत में ले लिया गया है, पुलिस का रिस्पांस टाइम कैसा था? कितनी देर बाद पुलिस यहाँ पर पहुंची? जी, जैसे ये हमला हुआ है, ज़ाहिर कैदी वैन पे हमला हुआ, उसके बाद जो है वो पुलिस को इत्तला हुई है और जो करीबी थाना है, थाना संजानी, उसकी जो पुलिस नफरी थी वो मौका पर पहुंची है। उन्होंने आके जो है वो कैदी वैन का और उसका जायजा लिया। फिर जो संजानी के अतराफ के जो इलाके हैं, चूंकि यहाँ पर कच्ची आबादियाँ भी मौजूद हैं और किसी तरह से भी जो एक नक्शे पर बनी हुई सोसाइटी होती है, जिस तरह से इस्लामाबाद का एरिया है उस तरह नहीं है। यहाँ पर अपनी मर्जी आपके तहत लोगों ने घर बनाए हुए, बड़ी गुंजान आबाद आबादी है और यहाँ पर चूंकि इससे पहले जो अफगान जो पनाहगुज़ीन थे वो भी यहाँ पर रहते रहे, जराइम पेशा लोग भी हैं, तो यहाँ पर थोड़ा मुश्किल था पुलिस के लिए। लेकिन पुलिस ने फिर जो है वो फौरन जो है बरगिरफ्तारी से ग्रैंड ऑपरेशन किया है। उस ऑपरेशन के तब फिर फायरिंग का तबादला भी हुआ है मुल्ज़िमान के दरमियान और पुलिस के दरमियान, और फिर तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर जो है वो पुलिस ने 4 हमलावरों को भी गिरफ्तार कर लिया, जबकि जो आईजी इस्लामाबाद की जानिब से तादाद बताई गई है कि 82 कैदी थे जिनको छुड़ाया गया था, उनको भी पुलिस की जानिब से दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस वक्त जो है अच्छा नहीं, अब इलाके की फिलहाल क्या सूरत हाल है? क्योंकि आप अभी बता रहे थे कि इलाके को कॉर्डन ऑफ भी किया गया है, तमाम जो मुल्जिमान फरार हुए थे उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अभी क्या पुलिस सर्च ऑपरेशन कर रही है? क्या इस इलाके की मजीद सर्च किया जा रहा है कि मजीद यहाँ पे लोग भी मौजूद हो सकते हैं? जी बिल्कुल, जो पुलिस की बारी नफरी तलब की गई थी वो इसीलिए तलब की गई कि जो हमलावर थे वो उनको भी तलाश किया जाए और कुछ ऐसे लोग अगर उनका साथ देने वाले मौजूद हैं तो उनको भी तलाश किया जाए। भारी नफरी जो है वो संजानी टूल प्लाजा के इर्द गिर्द का जो इलाका है यहाँ पे मौजूद है। सिविल कपड़ों में भी जो एहलकार है स्पेशल ब्रांच के वो भी यहाँ पे मौजूद है और इस वक्त भी जो है वो जो इर्द गिर्द का जो थोड़ा सा यहाँ पे एक जंगल भी है संजानी थाना के करीब और संजानी टूल प्लाजा के करीब, वहाँ पे भी सर्च ऑपरेशन जारी है और घरों में भी जो है वो पुलिस एहलकार तलाशी ले रहे हैं क्योंकि जब ये फरार हुए थे तो उस वक्त कुछ पुलिस ज़राए का कहना है कि जब ये कैदी फरार हुए तो रोड की दूसरी तरफ जो घर हैं, जो गलियां हैं उनके अंदर गए थे, लेकिन पुलिस की जो नफरी मौजूद थी वहाँ पे जो प्रोटेक्शन वैन मौजूद थी, अपना बचाव करने के साथ साथ वो उन कैदियों के पीछे भी भागे और उन्होंने उनको गिरफ्तार करने की उस वक्त कोशिश की और तमाम के तमाम जो है उन लोगों को इब्तदाई तौर पर वहां से गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन जो लोग फरार हुए उनके लिए पुलिस की मजीद नफरी तलब की गई और ये जो इलाका था इसको कार्डन ऑफ करने के बाद जो इर्द गिर्द का जो इलाका है वहाँ पे सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया और वो अभी भी जारी है। जी अच्छा नहीं, तो ये भी बताइएगा कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जैसे आप बता रहे हैं कि 4 से 5 लोगों को गालिबन गिरफ्तार किया गया है, उनसे अब तक कोई मालूमात सामने आई हैं कि ये यकीनन एक बहुत बड़ा ये वाकया है, 3 पुलिस वैन्स को निशाना बनाया गया है, तो उनसे कोई मालूमात अब तक सामने आ सकी हैं कि ये प्लानिंग कब और कैसे हुई है और इसका असल में इस तमाम प्लानिंग का, इस तमाम वाकये का जिम्मेदार कौन है?
जिस तरह बताया ये जा रहा है कि जो पिछले दिनों पीटीआई की तरफ से एहतजाज किया गया और धरने दिए गए यहाँ पे इस्लामाबाद में अच्छी खासी तोड़फोड़ की गई, उस दौरान जो है पुलिस के साथ जब हाथापाई के वाकयात हुए, उसके ऊपर पथराव किया गया, शेलिंग की जो वाकयात आए थे, उस दौरान जो है वो इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों से कारकुनों को गिरफ्तार किया गया था और कुछ MPAs का जिक्र किया गया है कि वो भी इस वैन में मौजूद थे और वो भी इन केसेस में मुलव्विस थे। उनको जब बड़ी तादाद में ये नौजवान भी गिरफ्तार हुए तो मुख्तलिफ थानों के साथ साथ जो रावलपिंडी के जो थाने थे उधर भी मुंतकिल किया गया और जो अटक के थाने थे वहाँ पे मुंतकिल किया गया। उसके बाद अगले दिन जब इनको पेश किया गया तो अटक जेल और रावलपिंडी जेल में भी इन कैदियों को रखा गया और जब अब ये केस की पेशी होती है तो वहीं से इन कैदियों को मुख्तलिफ वैन्स में लाया जाता है और उनमें अदालतों में पेश करने के बाद उन्हीं वैन्स में वापस ले जाया जाता है। रावलपिंडी से भी ये वैन्स आती हैं और अटक जो जेल है वहां से भी आती हैं और ये जो 3 वैन्स थी जिनमें कैदियों को ले जाया जा रहा था, ये इन कैदियों को अटक जेल में रखा गया था और वहां से पेशी के लिए यहाँ पे लाया गया था और 4 बजे के बाद 5 बजे के बाद ये वैन जो है दोबारा कैदियों को लेकर जेल की तरफ रवाना हुई है। तो उसके बाद रास्ते में जो है वो संजानी टूल प्लाजा पड़ता है, इससे तकरीबन कोई 12 से 14 किलोमीटर जो है वो आगे दूसरी हदूद में दाखिल होना था, लेकिन संजानी टूल प्लाजा के करीब जो है अचानक ये खबर आई कि जो हमला आवर हैं उन्होंने अचानक पहली जो वैन थी उसके ऊपर हमला किया और उसके पहले टायर ब्रस्ट किया और फिर उसके बाद काफिला रोकने के बाद इन वैन्स के ऊपर बाकायदा हमला किया और कैदियों को छुड़ाने की कोशिश की और उनको छुड़ा के करीबी जो आबादी थी उसमें चले गए और उसके बाद जो है वो पुलिस की नफरी जो फौरी तौर पर तलब की गई थी और साथ जो प्रोटेक्शन वैन्स जो थी उनके जो पुलिस एहलकार मौजूद थे उन्होंने भी फौरी तौर पर एक्शन लेके तो जो फरार हुए थे लोग उनको गलियों में से जो है वो गिरफ्तार किया गया और अब जो है वो IG इस्लामाबाद का भी ये कहना है कि तमाम के तमाम जो कैदी जिनको छुड़ाने के लिए ये कोशिश की गई थी उनको तमाम को गिरफ्तार कर लिया गया और इस वक्त वो पुलिस की कस्टडी में है। तमाम के तमाम कैदियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और तमाम कैदी जो हैं पुलिस की कस्टडी में हैं। सरदार अवैस, जैसा कि तफसीलात सामने आई हैं उसके मुताबिक 20 से 25 हमलावरों की तादाद थी। कुछ पता चल पाया है यानी शाहिदीन से पुलिस की बात हुई हो, ये मोटर बाइक्स पे थे, ये गाड़ी पर थे और ये मामले के बाद ये कहाँ रवाना हुए? आगे संजानी टोल प्लाजा की तरफ गए या वापस आए या किसी बस्ती में चले गए? पुलिस जब यहाँ पर पहुंची है तो उन्होंने जो एनी शाहिदीन से उनके बयानात जो हैं वो अभी तक पुलिस कलम बंद कर रही है। खासकर जो संजानी टोल प्लाजा का हमला है उनकी CCTV फुटेज भी पुलिस की जानिब से ले ली गई है और करीब जो भी कैमरे थे उनकी CCTV फुटेज भी हासिल की जा रही है और एनी शाहिदीन के बयान भी कलम बंद किए जा रहे हैं। जबकि अजराए का ये कहना है जो एनी शाहिदीन है कि ये संजानी टोल प्लाजा के करीब जो वैन पहुंची है तो पहले से ही ये जो 20 से 25 हमलावर थे ये इस गाड़ी का वेट कर रहे थे, ताक में बैठे हुए थे और इन्होंने यूं ही संजानी टोल प्लाजा क्रॉस किया है पुलिस वैन ने तो इन्होंने फिर फायरिंग की है, हमला किया है, गाड़ी को रोका है, फिर उसके बाद उसके शीशे तोड़े हैं और फिर हमले भी यरगमाल बना के जो वहां से अपने जो कैदी थे उनको छुड़ाकर जो करीबी, जैसे मैंने पहले बताया कि बड़ा गुंजान आबाद इलाका है, जराइम पेशा लोग भी अक्सर यहाँ पाए जाते हैं, तो वो जो है वहाँ पर लेके गए हैं। लेकिन पुलिस की जानिब से जो है वो फिर फौरन कोई रिस्पॉन्स सामने आया और उन्होंने बड़े कम वक्त में जो है वो करीबी जितने भी इलाके थे, मज़ाफ़ाती इलाके, तरनोल यहाँ पे करीबी इलाका लगता है, वहाँ पर सर्च ऑपरेशन किया, ग्रैंड ऑपरेशन किया IG इस्लामाबाद की ज़ेर निगरानी। उसके बाद फिर जो अब पुलिस के मौक़िफ़ सामने आया है कि अब तमाम हमलावर अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और जो कैदियों को छुड़ा कर लेके गए थे उनको भी अब जो पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया और कैदियों को जो अब अटक जेल मुंतकिल किया जा रहा है। अच्छा सरदार अवैस, कुछ अरसे से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सिक्योरिटी भी हाई अलर्ट है और पुलिस के नाके भी हम जगह जगह देख रहे हैं। इस तरह के किसी वाक़े के हवाले से या किसी और कार्रवाई के हवाले से क्या कोई ऐसी पहले से इत्तलात मौजूद थी? जी, पुलिस ज़राए से जो बात हुई है तो उनका ये कहना है कि ऐसी कोई इत्तलात अथेंटिक सोर्स या मुसद्दका खबरें नहीं थी। अगर ऐसी कोई इत्तलात पुलिस के पास होती तो जाहिर है फिर वो सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया जाता इन कैदी वैनों का, जिनमें तकरीबन 82 से ज़ायद 82 जो कैदी थे वो मौजूद थे और सब पर जो है वो दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमे दर्ज थे। तो ये कोई आम कैदी भी नहीं थे। अगर ऐसी कोई इत्तलात पुलिस के कहने को होती तो इस पर ज़रूर जो है वो सिक्योरिटी या हिफाजती इक़दाम को यकीनी बनाया जाता। अच्छा नईम, आप ये बताइए आम प्रोटोकॉल क्या होता है जब कैदियों की वैन में कैदियों को लेके किसी जगह ले जाया जा रहा होता है तो उस वक्त सिक्योरिटी के क्या इंतजामात होते हैं? क्योंकि रास्ता भी आप जैसा कि बता रहे हैं कि कुछ रास्ता ऐसा भी होता है कि जो ख़तरनाक होता है, तो वहाँ पर क्या पुलिस की इजाफी नफरी रास्ते में भी तैनात होती है? मुख्तलिफ पॉइंट्स पर क्या सूरत हाल होती है?
जब जेल से रावलपिंडी जेल अडयाला जेल इस्लामाबाद के करीब है, इसी तरह अटक जेल है, जब इधर से कैदियों को इस्लामाबाद में अदालतों में पेशी के लिए लाया जाता है तो एक प्रोटेक्शन वैन मौजूद होती है गाड़ी के साथ, क्योंकि जो एक वैन में तकरीबन 20 से 22 कैदी जो हैं उनकी तादाद होती है, इसी तरह 20 से 22 या 24 जितनी भी तादाद होती है। उसके साथ वैन में एक बैक साइड पे छोटा सा कमरा भी मौजूद होता है जहाँ पे 3 से 4 एहलकार अपनी बंदूक के साथ, अपनी राइफल के साथ मौजूद होते हैं। इसके साथ जो ड्राइवर चला रहा होता है उसके साथ भी 2 एहलकार फ्रंट में बैठते हैं। एक गाड़ी जो है वो इनकी प्रोटेक्शन के लिए होती है। साथ साथ कुछ मुकदमात की नोयत ऐसी होती है जिसके साथ जो तफ्तीशी अफसरान हैं वो भी अपनी फाइल्स लेके अपनी गाड़ियों में इनके साथ मौजूद होते हैं। तो जब भी ये हमला होता है तो फौरी तौर पर अगर कोई किस्म का हमला होता है तो 12 से 14 एहलकार जो हैं वो इन वैन के करीब ऑटोमेटिकली, अगर एक वैन होगी तो उसके करीब मौजूद होते हैं और वो फौरी तौर पर कोई ना कोई कार्रवाई कर सकते हैं। अब ये 3 वैन्स का बताया जा रहा है कि 3 वैन्स के ऊपर हमला किया गया है। उसके साथ जाहिर है 1 से 2 प्रोटेक्शन वैन्स का भी बता रहे हैं कि वो मौजूद थी, और साथ ही साथ जो वैन के अंदर जो सिक्योरिटी होती है वो भी 4 से 5 अफराद की होती है। तो फौरी तौर पर इन वैन्स के साथ जो सिक्योरिटी थी या हो सकती है वो तकरीबन 20 से 25 वो लोग भी थे। जब हमला किया गया तो पुलिस की जानिब से ये बताया गया कि फौरी तौर पर नफरी को तलब भी किया गया था, और साथ ये जो लोग थे इनके साथ इन्होंने भी जो है वो कार्रवाई की। शुरू में तो जब फायरिंग की तो उसके बाद तो ये लोग जो हैं वो साइड पे गए गलियों में। जब उनको फरार कराया गया, बताया जा रहा है कि जब वो गलियों में दाखिल हुए तो ये नफरी जो है ये फौरी तौर पर इन्होंने भी गलियों की तरफ उनको कार्डन ऑफ किया, और उसके बाद मजीद नफरी आने के बाद तमाम अफराद को गिरफ्तार किया गया। अच्छा सरदार अवैस, अब इस वाक़े के बाद यकीनन इस वक्त सिक्योरिटी भी हाई अलर्ट है, और जैसे कि आप बता भी रहे थे कि कार्डन ऑफ भी किया गया है। अब इन तमाम कैदियों को और जो लोग गिरफ्तार हुए हैं हमलावर, इन्हें क्या अटक जेल ले जाया गया है या कहीं और मुंतकिल किया गया है? जी, इस वक्त के सूरत में बताऊं तो इस्लामाबाद पुलिस की जो भारी नफरी है वो यहाँ पर तैनात है। संजानी टोल प्लाजा का जहाँ पर ये जो इलाका है जहाँ पर ये वाक़या पेश आया उसको मुकम्मल कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर अभी भी पुलिस का जो सर्च ऑपरेशन है जारी है, और आबादियों में और करीबी जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ पर भी पुलिस की भारी नफरी इस वक्त तैनात है, और जो कैदी हैं उनको अटक जेल मुंतकिल किया जा रहा है। जबकि जो 4 हमलावर अफराद हैं उसके हवाले से भी पुलिस ने कोई मौक़िफ़ नहीं बताया कि उन्हें कहाँ जो है वो मुंतकिल किया गया है। ज़ाहिर है ये जो इलाका जहाँ पे ये वाक़या पेश आया तो इसकी जो हदूद वो थाना संजानी है, तो ये कभी इम्कान है कि उनको थाना संजानी पहले जो मुंतकिल किया जाएगा, और उसके बाद जो मज़ीद उनसे बयानात भी कलमबंद किए जाएंगे और कल जो है फिर अदालत में भी पेश किया जाएगा। इस वक्त जो है यहाँ पर इंतहाई फुल प्रूफ सिक्योरिटी है, तमाम इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है। किसी भी किस्म की गैर मुतल्लका अफराद का और दाखिला बंद है, ट्रैफिक भी मुअत्तल है, और यहाँ पर जितने भी इस्लामाबाद पुलिस के आला अफसरान हैं वो इस वक्त मौका पर मौजूद हैं। तो तमाम तर जो तहकीकात है उनका आगाज़ कर दिया गया है। जाए वक़ूआ का जो है वो जायज़ा लिया जा रहा है। ऐनी शाहिदीन के जो बयानात हैं वो कलमबंद किए जा रहे हैं, जबकि जो कैदी वैन के ड्राइवर और अमला था उनसे भी जो है वो इब्तदाई बयानात जो है वो ले लिए गए हैं, कलमबंद कर लिए गए हैं। और इस वक्त जो है वो इस्लामाबाद पुलिस की जो हाई कमान है वो इस वक्त मकामी नफरी के हमरा भी मौजूद है, तो और तमाम जो तफ्तीशी अफसरान हैं वो भी मौजूद हैं, और अब बड़ी बारीकबीनी से जो है वो इस तमाम तर वाक़े की तहकीकात जारी हैं। और यहाँ पर जो है वो मौके पर भी तमाम तर जो इब्तदाई मालूमात थी वो पुलिस ने ले ली हैं, और उसके मुताबिक अब तहकीकात का दायरा जो है वो मज़ीद वसी कर दिया गया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सरदार अवैस, हमें आगाह करते हैं। नईम जंजू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। संजानी टोल प्लाजा पर कैदियों की 3 वैनों पर नामालूम अफराद ने हमला किया। पुलिस राय का बताना है कि नामालूम अफराद ने संजानी टोल प्लाजा पर पुलिस कैदी वैन्स पर फायरिंग की और शीशे भी तोड़े, और मुतादिद कैदी फरार भी हो गए। पुलिस का ये बताना है अब तमाम के तमाम कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है।